आज हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2 करेंगे। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवन इन ए एंड बी आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। ए में हमको दिया है x इक्वल टू एंड y इक्वल 5 और बी में दिया है x इक्वल -1 y इक्वल 3। अब इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल 7। यहाँ पे अपन चेक करते हैं, बाय पुटिंग x इक्वल टू एंड y इक्वल 5 इन दिस इक्वेशन वी गेट 7 इक्वल 7, 2 प्लस 5 इक्वल 7। दैट इज ट्रू, हैंस सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट and B for B check it, put x equal -1 and y equal +3 equal to which is not equal 7, hence B does not satisfy equation first. Now for second, 2x plus 5y equal 13. It can be easily checked by putting x equal to y equal 5 for A. Now for A, put x equal to and y equal 5. We have two into 2 plus 5 into 5 equal 4 plus 25 equal 27, not equal 13. Hence, B is not a solution of equation second. And for third, sorry, A is not a solution of second. And for B, put x equal -1 and y equal 3. Hence, this implies that B is a solution of second. Third equation, 2x minus 3y equal -11. First of all, we check for A. Now for A, put x equal to y equal 5
we have four minus 15 equal minus 11, which is true. Hence, A is a solution of equation third, and if we check for B, we put x equal minus 1 and y equal 3, we have minus 2, minus 9, it means minus 11. B, put x equal minus 1, y equal 3, we have minus 11, which is true. Hence, B is also a solution of equation third. Now for equation fourth. Now for equation fourth equation है 5x plus 3y equal 4. It can be checked easily by putting x equal to y equal 5 for A. For A, put x equal to and y equal 5. We have 10 plus 15 equal 25, not equal 4. Hence, A is not a solution of fourth. Check for B. Put x equal minus 1, y equal 3, we have minus 5 plus 9 equal 4, which is true. Hence, B is a solution of equation 4. This implies that question 2. Check which of A and B is a solution for given equation. A इक्वल A जो दिया है उसमें x इक्वल 3 एंड y इक्वल -1, B x इक्वल हाफ, y इक्वल 1/3.
और इसमें 4 इक्वेशन दिए हैं, चारों को हमको चेक करना है। फर्स्ट 2x + 5y = 1 and 2x + 3y = 3 and this is simultaneous equation। ए और बी दोनों को एक साथ चेक कर लेते हैं। नाउ पुट a = 3 y = -1 in both the equation। put x = 3 y = -1, we have 6 - 5 = 1, which is true। And second question 6 - 3 and 6 - 3 = 3, this is also true। Hence A and B both are hence A is a solution of first। Now check for B। Put x = 1/2, y = 1/3। यहाँ पे x के स्थान पे 1/2 रखना है, तो हमको मिलता है 2 × 1/2 मतलब 1 प्लस, रख के बता देते हैं अपन, 2 × 1/2 प्लस 5 × 1/3 = 5/3 = 5 + 3 means 8/3, which is not equal 1, hence does not satisfy equation first। And similarly we can check for 2x + 3y = 3 also। Put x = 1/2 means 1 plus 1 = 2, and equation second 1 + 1 = 2 not equal 3, hence it also does not satisfy equation second। Then B is not a solution of equation first। Other 4 questions can be solved easily as seen here। We have only to check by putting the value of x and y in each of the equation। If x and the value of x and y satisfy given equation, then we say that the given point is a solution of given equation। हमको सिर्फ इतना करना है कि दिए गए समीकरण में x के स्थान पे 3, y के स्थान पे -1 रख के चेक करना है। यदि इक्वल हो जाता है राइट साइड के, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और यदि दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो, तभी वो सिमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो हमने ए के लिए चेक किया, ए के जो पॉइंट्स हैं वो पहले और दूसरे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ए जो है पहले सिमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और बी जो है वो इस सिमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा ही हम बाकी सभी इक्वेशन के लिए भी चेक मेथड से चेक कर सकते हैं कि दिए गए पॉइंट्स आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिमल्टेनियस इक्वेशन आर नॉट। नाउ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में हमको बोला गया है सॉल्व द गिवन इक्वेशन। नाउ फॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में बोला गया है सॉल्व द गिवन इक्वेशन, यू कैन यूज विच एवर मेथड यू वांट। थर्ड का फर्स्ट है, हमको इसको सॉल्व करना है गिवन सिमल्टेनियस इक्वेशन को, और हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो x - y = 1 फर्स्ट है इसका, और 3x - 2y = 12।
if we use elimination method, we eliminate x, then the value of y can be calculated. तो x को एलिमिनेट करने के लिए पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूसरे इक्वेशन को उससे सब्सट्रैक्ट करना है. मीन्स बाई इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 माइनस इक्वेशन सेकेंड. अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे x है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3x, ये तो 3x है ही. यदि हम उसके बाद जो मिलेगा उससे इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3x ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम हैं. फिर y की वैल्यू हमको मिल जाएगी. इसका मतलब ये है कि 3x माइनस 3y इक्वल 3 एंड 3x माइनस 2y इक्वल 12. माइनस करना है, ये 3x माइनस 3x खत्म हो जाएगा और ये माइनस 3y प्लस 2y, माइनस माइनस प्लस 2y इक्वल माइनस 9. दिस मीन्स माइनस y इक्वल माइनस 9 implies that y equal 9. Now put the value of y in any of the above equation. We can find corresponding value of y. Now put y equal 3 in first equation. We have x minus 9 equal 1. It means x equal 10. Hence the solution of the equation first is x equal 10 and the corresponding value of y is 9. The answer is x equal 10 and y equal 9. अब क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल 5 एंड 2x माइनस 4y इक्वल 6. This equation, this is first, and second equation can also be written as x minus 2y equal 3. This is equation second. It's clear that equation first and second both are parallel line, since coefficient of x and y in both the equation are same. This implies that no common point in both a number of points satisfy both the equation. It means both the straight line are parallel, hence there is no solution, no common solution. It implies that there is no unique solution. Question number third x plus y equals 6 and x minus y equal 2.
Using elimination method, add both the equation. We have 2x equal 8, it means x equal 4. Now putting the value of x in any of the above equation, we get, we put x equal 4 in first. We have 4 plus y equals 6. This implies that y equals 6 minus 4 equal 2. Hence, x equal 4 and y equal 2 is the solution of the equation third. Now equation fourth. फोर्थ इक्वेशन दिया हुआ है 5x माइनस 8y इक्वल -1 एंड 3x माइनस 24y अपॉन 5 इक्वल -3 अपॉन 5. This is first equation, or this can be written as 15x minus 24y equal -3. Now using elimination method, first of all equalize the coefficient of x in first, and it means coefficient of x here 5, but in equation second coefficient of x is 15. Now multiply equation first by 3 and subtract equation second. Hence by first into 3 minus second, we have 15x minus 24y equal -3, 15x minus 24 equal -3. Both the equation are same. This means both the straight line are parallel. Since in both the equation are same, hence no unique solution. Now question number 5. Simultaneous equation 5 is given as 3x minus 4y equal 1 and 6x minus 8y equal -5. -15. Since 3 upon 6 equal -4 upon -8 equal half. Ratio of the coefficient of x and y in both the equation are same.
this implies that there is no unique solution Now question number 6. X plus 2y equal 8 and 2x plus 4y equal 16. These two equations are completely same. Both the equation represent same straight line. It means there is no common point. In other words, there is no unique solution. Are parallel. Hence, no unique solution. यदि हमको सिमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें x का कोफिशिएंट का रेशियो y का कोफिशिएंट का रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों स्ट्रेट लाइन दोनों इक्वेशंस एक ही स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब ये है कि उन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि दो इक्वेशन का कॉमन पॉइंट से मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तभी उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। बट हेयर बोथ द स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल, किंतु यहाँ दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, अर्थात कोई भी कॉमन पॉइंट उनमें नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनका कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर द गिवन वेरिएबल। हमको इसमें भी सिमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, उसको सॉल्व करना है। यहाँ किसी मेथड के बारे में स्पेशली बोला नहीं गया है, तो तुम किसी भी मेथड से, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, या फिर ग्राफ मेथड हो, या फिर क्रॉस मेथड हो, या और भी तुमको कोई मेथड मालूम है, मैट्रिक्स मेथड हो, तुम यूज़ कर सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने ऊपर किया हुआ है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 4 और इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड में से यदि कोई बचा हुआ हो और वो आपसे ना बनता हो, तो आप कमेंट्स कर हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, द कास्ट ऑफ 15 किलोग्राम टी एंड 17 किलोग्राम कॉफ़ी इज रेस 183 एंड कास्ट ऑफ 25 किलोग्राम टी एंड 13 किलोग्राम ऑफ कॉफ़ी is raised 213. What will be the cost of 7 kilogram tea and 1 kilogram coffee? हमको यहाँ पे दो कमोडिटी का रेट दिया हुआ है। रेट दिया हुआ है का मतलब ये है कि कुछ क्वांटिटी इनका खरीदा गया है और उनका टोटल कीमत हमको दिया गया है। यहाँ पे हमको इसको सबसे पहले एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना होगा, और एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखने के लिए 5th क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम टी इक्वल x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम कॉफ़ी इज़ y रुपीज़। सपोज cost of 1 kg tea equal x rupees and
cost of 1 kg coffee equal Y rupees. Then according to question, 15 kilogram tea means 15x plus 17 kilogram of coffee means 17y. टोटल कॉस्ट इनका दिया हुआ है 183 रुपीज़. अगेन इन सेकेंड कंडीशन 25 किलोग्राम टी मीन्स 25x प्लस 13 किलोग्राम ऑफ कॉफ़ी मीन्स 13y इक्वल दिया हुआ है 213 रुपीज़. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू निकालना है, अर्थात कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ टी एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ कॉफ़ी हमको मिल जाएगा. उसके बाद फिर अपन 7 किलोग्राम टी और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का रेट भी निकाल सकते हैं. तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं. Now from equation find the value of y in terms of x. इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू x के टर्म में अपन फाइंड करते हैं. तो y इक्वल हो जाएगा 183 माइनस 15x डिवाइडेड बाई 17. ये y का वैल्यू हमको x के टर्म में मिला. अब इस y की वैल्यू की इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं. पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्योंकि हम y की वैल्यू x के टर्म में इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो ये we get 25x प्लस 13 इंटू 183 माइनस 15x अपॉन 17 इक्वल 213. एलसीएम निकाल के हमको सॉल्व करना पड़ेगा. मीन्स दिस इज अपॉन 1. एलसीएम 17 होगा. इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 25 इंटू 17x प्लस 13 इंटू 183 माइनस 15x अपॉन 17 इक्वल 213. दिस मीन्स ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस 13 इंटू 15x प्लस 183 इंटू 13 इक्वल 17 213 इंटू 17. This implies that 425 425x माइनस 13 पंचे 65 की 5 कैरी 6 13 कम 13 और 6 19 195x इक्वल 213 इंटू 17 माइनस 183 इंटू 13.
हैं।